بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میں اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم سب مل کے سیدوں کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کی نسل کا صدقہ عطا فرمائے۔ اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ کرم رب کا آج اس نے ہمیں اور آپ کو سیدوں کا مہمان بنایا ہے۔ مزار میں بھی آل رسول ہے اور ممبر پہ بھی آل رسول آنے والے ہیں اور ہیں۔ سید فرد میاں صاحب قبلہ اور سید سلیم میاں صاحب قبلہ کی آمد ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ چہرے آپ دیکھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ بڑی بات لگ رہی ہے مجھے، جبکہ اس پرفتن دور میں ہر آدمی کو تماشے کی پڑی ہے اور شور شرابے کو بندہ زیادہ فوقیت دے رہا ہے اس وقت میں۔ جو جتنا زیادہ تماشا کر لے بندہ اتنا زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے، اور کئی بار جس کی پوری ذمہ داری ٹھہرائی جاتی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کو، وہ غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں اور ذمہ دار بریلی والا ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں، کسی بھی محفل کے تماشے سے نہ مسلک اعلیٰ حضرت کو کوئی لینا دینا ہے، نہ اعلیٰ حضرت والوں کو ان سے کوئی لینا دینا ہے۔ اتنی تباہی و بربادی ہوئی عرسوں کے نام پہ، میلوں کے نام پہ، کہ قوم کی غیرت کا جنازہ نکل گیا اور ہم ابھی اسی میں پڑے رہ گئے، بھئی رات موج آئی کہ نہیں آئی، رات موج آئی کہ نہیں آئی۔ کودتے نااہل لوگ ہیں اور برائیاں بریلی والے کے دامن میں جا کے گرتی ہیں۔ میں آپ سے صاف بتا دوں، بریلی والے کا مسلک یہ ہے، نہ مزار کو سجدہ کرنا جائز ہے، نہ مزار کا طواف کرنا جائز ہے، اور نہ ہی یہ ڈھول باجے گاجے اسلام میں جائز ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اگر کوئی اپنی جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار بریلی کا احمد رضا نہیں، وہی شخص ہے جو خود میں ان جہالتوں کو انجام دیتا ہے۔ کوئی بھی اعلیٰ حضرت یا مسلک اعلیٰ حضرت کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت تو یہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور اسی کی روشنی میں جو چلتا ہے نا، وہی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہے۔ ہاں، ورنہ ضروری نہیں ہے ہر مزار والا اعلیٰ حضرت کو مانتا ہو، ہر پیر ہر مجابر اعلیٰ حضرت کو اس دور میں مانتا ہو۔ برا لگ جاتا ہے لوگوں کو، لیکن بات کڑوی ہے، سچی کہتا ہوں۔ کئی مجابروں نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، اور وہ نوجوان، آپریٹر صاحب اس کا تھوڑا سا جو یہ گونج ہے نا یہ کم کر دیں، بند جگہ ہے، بات تھوڑی صاف سمجھ میں آئے، گونج کم کریں اس کی تھوڑی سی اور آواز بڑھا دیں۔ میں بس چند باتیں آپ سے کہہ کے میں اپنی بات ختم کر لوں۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جب بھی اپنا پیسہ لگائیں نا، حلال جگہ پہ لگائیں، حرام کام میں کبھی روپیہ نہ لگائیں۔ سمجھ گئے اتنی بات؟ کہاں لگائیں گے پیسہ؟ بولیں سارے، کہاں لگائیں گے؟ اور زور سے کہاں لگائیں گے؟ حلال جگہ پر۔ اور حلال جگہیں آپ اپنے علماء سے پوچھ لیں، اگر کوئی چندہ مانگے تو، کہ فلاں شخص نے اس کام کے لیے چندہ مانگا ہے، دینا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ مفتیان اکرام، علامہ صاحب، یہ لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جائز ہے، تو پھر آنکھیں بند کر کے خرچ کریں، اور اگر یہ روک دیں تو پھر رک جاؤ۔ اس لیے کہ علماء اپنے باپ کی بولی نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں رسول پاک کی بولی بولتے ہیں۔ میں جانتا ہوں جب یہ علماء کسی غلط کام سے روکیں گے تو کچھ پاکھنڈیوں کی آواز اٹھے گی کہ فقیروں اور مولویوں میں بنی کبھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں فقیری آتی ہی علم والوں کو ہے، جنہیں علم نہیں آتا انہیں فقیری نہیں آتی ہے۔ اور رہ گئی بات ولایت کی، تو ولی وہی ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے۔ یہ بھی سن لیجئے، کوئی ننگا، کوئی شریعت کا باغی ولی نہیں۔ ولی بولنا پڑے گا، ولی اگر یہ سوچ کے بیٹھے ہو مولوی کہیں جنت بات کے جائے گا تو ذہن سے نکال دینا۔ میرا مزاج ہے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کمیٹی والے بھی بڑے سخت ہیں،
तो आज जलसे वाले भी काफी हैं। अल्लाह करे कि जो खामियां हमारे बीच हैं, खुदा करे इस महफिल के जरिए हमारे बीच से वो खामियां निकल जाए। और कोशिश ये कीजिएगा कि हम इस महफिल से जो बातें काम आने वाली हैं वो अपने दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू इसलिए भी करता हूं, महफिल में अक्सर नौजवान मिलते हैं हजरत, बड़े बूढ़े या तो हैं ही नहीं, आने के लायक नहीं है, तब भी हमारे लिए नसीहत का एक बाब है। नहीं है इसका मतलब ये कि लोग बुढ़ापे को पहुंच नहीं पा रहे हैं, जल्दी कब्रिस्तान चले जाते हैं और उठ के नहीं आ पा रहे हैं, तो इसमें भी एक नसीहत है कि आज ताकत है, शायद कल इतनी भी चलने की ताकत ना हो। हमारे भाई ने बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर पढ़ा था जिसका मफहूम था कि जवानी ही की इबादत में मजा आता है। ठीक है ना, आज ताकत है तो बैठे हैं सारे लोग, अल्लाह करे ये बातें दिमाग में उतर जाए। वजह है ना, तो पैसा कहां खर्च करेंगे? हलाल की जगह के, किस जगह पे? सारे बोले किस जगह पे? हलाल की जगह पे। जो रेलिंग के उधर बैठे वो भी उर्स में ही आए हुए हैं। हाँ, जो मस्जिद की हद में बैठे ना वो भी उर्स में आए हुए हैं। ठीक है, फर्क इतना, वो अल्लाह का घर है, ये अल्लाह वाले का दर है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां अल्लाह का घर भी होता है। क्या बात, इस पे बात नहीं करनी है, बस चंद बातें जरूरी मैं कह जाऊं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? पैसा कहां खर्च करेंगे? हलाल जगह। आप अपने रुपए की अहमियत समझिए, कितनी मेहनत से हम लोग पैसा कमाते हैं, कितनी मेहनत से। कोई दुबई, कोयत, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, गुजरात, कहां कहां आप जाइए, अपने यूपी के लोग मिलते हैं, नौजवान बच्चे जलसे कराते हैं। मैं तो समझता हूं मुंबई पे यूपी वालों का कब्जा है, पुणे में यूपी वालों का कब्जा है। अक्सर हमारे इलाके के लोग उधर रहते हैं, लेकिन तकलीफ कब होती है? पूरा साल चंदा करते मेहनत की कमाई का, और जब इलाके में आते हैं ना, चंदा ये कह के करते हैं कि मौलवी साहब उर्स होना है, और जब उर्स की बारी आती है ना तो वो मेहनत की कमाई इकट्ठी करके लाने वाले लोग जब मुजाबिरों से आके कहते हैं ना हजरत जी उर्स होना कि नहीं, तो बाबा कहता उर्स तो होना है। पूछते हैं किसे बुलाया जाएगा? बाबा कहता है कि बस उसे बुलाया जाएगा कि जो ढोल भी लेके आएगा, तमाशा भी करके जाएगा। इन तमाशों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मुझे तो हैरत होती है, ये लोग कहते मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां लगी होती हैं, जो एक वक्त मस्जिद में नहीं जाया करते हैं, उन पे चिश्ती रंग चढ़ा करता है। जिनके मुंह से शराब की महक आती है वो कहते हैं चिश्ती रंग चढ़ गया है, और उनके धुत नशे में आकर के लोग कहते हैं कलंदर को बुलाया है। किसका कलंदर है? कोई कहता मैं अली का मलंग हूं, औकात देख अपनी और बात देख अपनी। अली के मलंग ऐसे नहीं होते, रह गई अली की बात। खुदा की कसम अली इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, हजार बार बशोयम तहन से मुझको गुलाब उनुस नामे तो गुफ्तन कमाले बेअद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये कंडीशन है हमारी, बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं खुल के कहता हूं, इस्लाम सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में खानकाहों के जरिए फैला है, लेकिन आज इस्लाम को सबसे बड़ा नुकसान कुछ खानकाहों की वजह से पहुंच रहा है। खुदा करे अक्ल सलीम आ जाए इन मुजाबरों को, जो शरीयत की नहीं तबीयत की सांचे में ढालना चाहते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, जिन मजारों पे तमाशे होते हैं ना, जाओ उठाओ मजार वाले को, पूछो उससे जाके तेरा मजार कैसे बना, क्या ढोलक लटकाई थी गले में, बाजे बजाए थे गलियों में? अगर रब इजाजत देता इनको ना, तो ये मजार से आवाज दे के कहते नादान हमारी रातें सजदों में गुजरती थी, दिन रोजों में गुजरा करते। वाह वाह, क्या कहें, ये कंडीशन रही है इनकी, पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई, तभी तो अल्लाह ने इनके मजार बनवाए, तब बने इनके मजार जाकर के। आज तो जितना बड़ा चला दिया है उतना ही बड़ा पहुंचा हुआ। नंगा मिल गया कोई, तावीज भी दे जाओ, नंबर भी दे जाओ। नंबर क्या क्या करेगा? कल सट्टे का नंबर पूछना। हाँ, ये नंगे, ये टटोरी, ये नशेड़ी सिर्फ सट्टे का नंबर बता सकते हैं, खुदा की बारगाह तक पहुंचने का रास्ता तो अल्लाह वाला ही बता सकते। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। इन्हीं से पूछा जा सकता है। कौम का बेड़ा गर्क है। माफ कीजिएगा, मसलक के आला हजरत ये नहीं है कि 70 चादरें चढ़ाई जाएं। मसलक के आला हजरत ये कि सिर्फ एक चादर काफी है। कितनी चादरें काफी है? एक। सारे बोलो एक। लेकिन कोई मना ही नहीं करता, इसलिए कि दुकान मद्दी हो जाएगी।
हाँ, एक चादर 70 गज की लेकर 18 लोग चल रहे हैं, ये इस्लाम है? अब्बा कहते बेटे दवा ला दे, घर में गाड़ी ना हो तो कह रहा बाइक नहीं है। 2 कदम चल के बाप की दवा नहीं ला सकता, 70 गज की चादर लेके 10 किलोमीटर से आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जामी आ रहे हैं। ये कंडीशन है हम लोगों की। चादर लेके 70 गज से फिर तो कैसे आते होगे? हर कदम पे 2 रकात अदा हो रही होगी, वजूद रोजे से होंगे, लब पे दुरूदों के तराने होंगे। लेकिन जब जाके देखो ना इन 70 गज की चादर वालों को, जब चलते पैर में जूते तो नहीं होते हैं, लिबास भी सलामी नहीं, चेहरे भी सलामी नहीं, चलते चलते थक जाते हैं, रास्तों में नशे कर करके चला करते हैं। मुझे बता तो सकी, तू 12 किलोमीटर से चादर लेके चला, जोहर सफर में खत्म, असर सफर में खत्म, मगरिब सफर में खत्म, सारी नमाजें ज़ाये करके अगर तुम मजार तक आ रहा है, क्या जरूरत पड़ेगी तेरी चादर की? मैं तो कसम खा के कहता हूं, चादर कितनी भी कीमती लेकर के आ जाओ, अगर मजार वाला अल्लाह वाला है तो इसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है। और अगर अमाल अच्छे नहीं है तो तेरी 70 नहीं 700 गज की चादर से भी नतीजा कुछ नहीं है। तेरी चादर से इनके रुतबे बुलंद नहीं होंगे, बल्कि तेरे आने से खुदा तेरे रुतबे बुलंद करेगा। लेकिन आने का तरीका ये होना चाहिए, इस अंदाज में आओ कि जब तुम चलो तो देखने वाला देख के कहे अगर मुस्तफा के वफादार ऐसे हैं तो मदीने वाला ताजदार कैसा रहा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। ये खुल के गुंडागर्दी हो रही है मजारों के नाम पे। कब रोक लगेगी? किस दिन बदलेंगे हम? वो पैगंबर जिस पे पहली आयत की करा की नाजिल हुई, वाह, आज उसकी उम्मत सबसे बड़ी जाहिल है हिंदुस्तान में। ये रोने वाली बात है। यहां आंसू आते हैं। ये कंडीशन है, सबसे पिछड़े हम हैं भाई। अपनों में बैठोगे सारे मौलवी दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तो हम अपने बीच में बैठे ना, तो हाई स्कूल भी करा ले तो कह रहा है जी दुआ करियो मौला हाई स्कूल में। हाई स्कूल कर लिया उनने और फिर कोई काम ही नहीं है, लल्ला को दुकान करा दी, बस हो गई कामयाबी हमारी, बन गए काबिल हम लोग। कंडीशन देख, आंखों के अस्पताल में चले जाओ सारे अंधे लगते हैं, हड्डी के अस्पताल में चले जाओ सारे लंगड़े मिलेंगे, सही बता रहा हूं। कान के अस्पताल चले जाओ सारे बहरे लगते हैं। कमी नहीं है किसी की, नांदों की, न बहरों की, न कानों की, न मूले, न लंगड़े। जैसों में पहुंच जाओ वैसे ही लगते हैं सारे। तो तुम्हें क्या लगता है हम मजबूत है? तो भाई तुम शीशगढ़ वाले हो, अच्छा खाते पीते हो, अल्लाह अच्छा खिलाए पिलाए। हर जगह की कंडीशन तो ये नहीं है ना। माफ कीजिएगा, हमारी सियासत और हमारी क़यादत, यहां 50 लोग बैठे, एक चिपट्टी आ जाए सारी भाग जाएंगे, कोई बचाने के लिए बात करने रुकेगा नहीं। और जब बहुत बड़ा हमारा नेता होगा ना, वो 10,000 दे के रफा दफा करेगा। ये हमारी सियासत है। 10,000 दे के हजरत रफा दफा कर रहे हैं, कह रहे नेताजी ने करा दिया काम। नेताजी ने नहीं, गांधी जी ने कराया। अगर आप पढ़े लिखे होते आपको अपना हक मालूम होता। भाई मालूम ही नहीं हमारे क्या राइट है, क्यों? क्योंकि हम पढ़े ही नहीं है। 70 साल से हमने सिर्फ मजार बनाए, मजार, कुछ और नहीं बनाया। मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, मजार भी सबके नहीं बनने चाहिए, मजार अल्लाह वालों के बनने चाहिए, अल्लाह वालों के बनने चाहिए। अब तो जिस गली में चले जाओ वही मजार है। तारीख कुछ भी नहीं कह रहे, बताएं ख्वाब आया था रात, तो यहाँ हमने आके देखा तो ईंट उखड़ रही थी, हम समझ गए अल्लाह वालों ने कहा मेरा मजार बनाओ। ये कंडीशन हमारी है। एक तो कह रहे आप पूरे 72 बनाऊंगा अपने खेत में, कहाँ निकले तो रात मजार निकला, पेड़ फट गया बीच में से। तो दूसरे ने जब देखा ना, ऐसा है ना, दूसरे ने देखा फिर बड़ी चादर चल गई है। उन्होंने कहा मुझे अपने खेत में 72 बनाने। मैंने कहा पूरी करबला बनाएगा क्या? ये कंडीशन है हमारी। माफ कीजिएगा, तुमने सबसे पक्का बरेलवी हूं, तो मुझे बदअकीदा ना समझे, हमारे काम गलत हो गए, तरीके गलत हो गए। हमारी हरकतों को देख के लोग आलादत को भोंकते, जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाता। ये बरेली वाले लोग, बरेली वालों को जानता है? बरेली वाले किस नजरिए के मालिक है? बरेली वाले सुन, हम जामी के आशिकों में आते हैं,
اور کون جامی؟ وہ جامی جو حضور کی نعت کے چند مصرے لکھ کے لے کے چلے، مدینہ قریب آئے، حضور بادشاہ وقت کو حکم، حاکم کو حکم دے میرے جامی کو قید کر کے جیل میں ڈالو، میرے مزار تک نہیں آنا چاہیے۔ لوگ باتیں کرتے مگر میرے امام نے کہا تھا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ یہ زمانے کو بتا دو، ہم ولیوں کو مانتے ہیں کیا؟ ولیوں کو ہم خدا کا دوست مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ ہم ولیوں کو خدا کا دوست مانتے ہیں، خدا بولیں ذرا، بات جانی چاہیے، خدا نہیں مانتے، خدا والا مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ یہ ہم بریلویوں کا عقیدہ ہے، اور ہم یہ اجازت ہی نہیں دیتے کہ کوئی کسی پیر کو سجدہ کرے، کسی مزار کا طواف کرے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اجازت اس کی بولے ہیں نہیں دیتا ہے۔ اس کی آڑ میں لوگوں نے فائدہ اٹھایا، معاف کیجئے گا، ہماری کنڈیشن ہر اعتبار سے پیچھے۔ نوجوان ممبئی پونے میں محنت کرتے، آ کے کہتے ہیں بابا کیا ہونا ہے؟ سچ تمہیں پتا امیر سوال ایک نمبر پر اب سے اسے بلا لو، ہے نا؟ اب سے اسے بلا لو، کہاں دیکھا موبائل میں، اب سے اسے بلا لو، تو چلو ٹھیک ہے بابا کر لو، بابا نے کر لیا۔ اور جب بابا نے کر لیا نا تو کہہ رہے بابا مزہ نہ آگا، کیسے؟ بولے جواب دینے والی بھی ہونی چاہیے۔ ابے تمہارا گھر بیوی کے جوابوں سے تمہارا دل بھرا نہیں ہے؟ یہاں بھی جواب ہی چاہیے تمہیں۔ کنڈیشن دیکھو، کہہ رہا جواب والی بھی ہونی چاہیے، جس سے صاحب مزار کا کوئی لینا دینا نہیں، اس کے سینے پہ ڈھولک بجوائی ہم نے، جس سے پوری زندگی یہ روکتے رہے، ان کے سینے پہ حرام کاریاں کی ہم نے، پھر کہہ رہے ہیں مزار سے فائدہ نہیں ہو رہا، ہوگا کہاں سے؟ بتائیے ہوگا کہاں سے فائدہ؟ فائدہ خالی کہنے سے نہیں ہوگا، فائدہ طریقوں کو اپنانے سے ہوگا۔ پھر سجتی ہیں محفلیں، شاندار گدے لگائے جاتے ہیں، شاندار ساؤنڈ لگائے جاتے ہیں، 2 کرسیاں لگائی گئی، 2 گدے لگائے گئے، ایک طرف بغیرت بیٹھا ہے تو دوسری طرف قوم کی بغیرت بیٹی بیٹھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد چند بد چلے ذہنی عیاش طبیعت کے مالک آ کر کے آگے کرسیاں ڈالا کرتے ہیں، پھر جب سوال و جواب ہوتے ہیں اور اعتراض ہوا کرتے ہیں، شعر و شاعری ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہے، پھر قوم کے بیٹے اٹھ کر کے ان عیاش طبیعت لوگوں پہ پیسے لٹایا کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب پیسے لٹائے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں آج پتا چلا ہے مکھیا کے بیٹے پہ کتنا پیسہ ہے، آج پتا چلا ٹھیکیدار پہ کتنا پیسہ ہے، آج فلاں کے بیٹے نے سیکھ اونچی کر دی ہے، آج اس کے بیٹے نے بہت نام روشن کر دیا ہے۔ خدا کے واسطے یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شان و شوکت کی بات نہیں ہے۔ جاؤ پتا تو تب چلے گا جب قبر میں پہنچو گے کس کی سیکھ کھڑی رہ گئی ہے، کس کی سیکھ گر گئی ہے۔ اصل سیکھ کا فیصلہ یہاں بیٹھ کر کے نہیں ہوگا، میرا جبہ دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرنا کہ میں کوئی جنتی بندہ ہوں، میرا ماما دیکھ کے نہ فیصلہ کرنا میں کوئی جنتی ہوں۔ جنتی وہ ہوگا موت کے وقت جس پہ خدا مہربان ہوگا، اور قبر میں جا کے جس پہ مدینے والا مہربان ہوگا۔ اللہ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس کمبل پوش، واہ واہ واہ، زندہ باد اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ واہ واہ واہ، ہمارا تو کچھ لگا نہیں نا دین پہ، یہ بابے تو بیٹھے رہ گئے نا، ابا مر گیا، پکا شرابی تھا، بیٹھ گیا گدی پہ، لوٹ رہا ہے قوم کو۔ دین کیسے بچا کے پوچھ کربلا والوں سے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، دین میں کتنی قربانی لگی ہے، پوچھ فاطمہ کے لالوں سے۔ یوں ہی دین ہم تک نہیں آیا ہے، ایسے ہی مزار نہیں بن گئے، خدا کی قسم خون دیا ہے اہل بیت نے، تب جا کے دین ہم تک آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خون دیا ہے اہل بیت نے، تب جا کے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور قسم خدا کی، میں رک کے بات عرض کر لوں آپ سے، معاف کیجئے گا اگر بات کڑگی لگ جائے تو۔ ہم نا، میں سچی بات کہتا ہوں، ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو ان کی قربانیوں کا پھل کھا رہے ہیں، ہمارے حصے کی پریشانی تو کربلا والے اٹھا گئے۔
हमारे हिस्से के दुख तो मदीने वाले ने उठाए है। आज न तेरा गरिबान दीन के लिए पकड़ा गया, न मेरा गरिबान दीन के लिए पकड़ा गया। पूछ शाब अबी तालिब की भूख कैसी थी, पूछ वो बच्चों का बिलखना कैसा था, पूछ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से, वो हुजूर के साथ शाब अबी तालिब के गुजरे हुए लम्हे, वो पूछ नबी की बेटियों से वो शाब अबी तालिब की भूख क्या थी। एक दिन मेरा नबी शाब अबी तालिब में आया है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने आगे बढ़ के वेलकम किया था। तो बताओ जाकर के नैयाश तबियत मुजावरों को, जिन्होंने कौम और इस्लाम की खैरत लूट के रख दी है, जिनकी बुनियाद पर आला हजरत और मसलक आला हजरत को गाली दी जा रही है। पूछो जरा कान पकड़ के इनसे, तुम्हारे बाप का दीन नहीं है, जैसे मर्जी के मुताबिक तुम चाहोगे ढाल लोगे। अभी आला हजरत के सिपाही जिंदा है, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दीन को चलने नहीं दिया जाएगा। दीन वैसे चलेगा जैसे मुस्तफा ने ला के दिया था, अबू बकर ने गोद में उठा के हम तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अबू बकर सिद्दीक, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। क्या मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सकी भाई और इनके तमाम भाइयों को, जितने भी अहबाब ने, कमेटी वालों ने ये महफिल सजाई है और रुत बदल दी है, वो उसकी रुत। हाँ, पहले होते थे तमाशे, अब मदीने वाले की बातें हो रही है। हाँ, वो कहा था ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती न, की कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते। हाँ? अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, खास करके जो मज़ार के जितने भी खुद्दाम है, अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, ऐसे ही दीन नहीं आया है, ऐसे ही नहीं आया है। हाँ, तो भाई बाप की जमीन ऐसे ही नहीं बच जाती है। बाप इतनी मेहनत करता है कि उसकी बाप वाली भी बची रहे और अपना भी इतना कमा ले कि जो जरूरतें पूरी हो जाएं, तब जाके दादा की पोते को मिलती है। हाँ, अगर सारे ऊपर बेच के चले आए तो नीचे वालों को कुछ नहीं मिलने वाला, ऊपर वाले बचाते सब नीचे वालों को मिलता है। तो बताया गया 7 पुश्तों में एक बेटा ऐसा होता है जो सारी इकट्ठी की हुई में आग लगाता है। ये अलग रविश की एक बात हो जाएगी, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझे दीन की कुर्बानियां, समझे कोई गरिबान हमारा नहीं पकड़ा गया है ना। अभी नामों से रिसालत की बात थी, बड़े बड़े लिहाफों में मुंह दे के पड़ गए थे, माहौल नहीं है, हालात नहीं है, नहीं बोला जाएगा। हुजूर की इज्जत की बात हो ना, फिर किसी माई के लाल से डरा नहीं जाएगा, इसलिए कि जिंदगियां हुजूर के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार। हुजूर की इज्जत से बड़ी कोई चीज हमारी नहीं। उसमें भी लोग मसले ढूंढ रहे थे, हालात देख रहे थे, क्या यार हालत। हम बच्चों के मसले में समझौता कर सकते, दुकान मकान के मसले में समझौता कर सकते, मुस्तफा की अजमत पे कोई समझौता नहीं। क्या बात है, वाह। बस एक ही उसूल है, अगर सुकून चाहते हो तो मेरे नबी की अजमत से छेड़छाड़ ना होनी चाहिए। बस ये एक बात याद रखी जाए। उसमें भी लोग मुंह दबा के पड़ गए, चलिए आप मुंह दबा के, ए बेटे बैठ जा यार, मालूम है जगह तंग है यार, बैठ जा, बार बार उठ के न जाओ। तवज्जो है ना सारे लोगों, हमारा कुछ नहीं लगा दीन, कुछ नहीं, उनसे पूछो जिनका लगा। हुजूर आए शाब अबी तालिब में, तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं बताने लगा हूँ, हुजूर जब तशरीफ लाए ना, तो सबसे आगे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हुजूर की वो प्यारी ज़ौजाएं जिन्होंने 25 साल मेरे नबी के साथ गुजारे। अल्लाह, कितने? 25 साल। और जब तक ये बाहयात रही, मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। इस मोहब्बत के साथ हुजूर के साथ जिंदगी गुजार गई। खुदा की कसम, ऐसी खातून कोई ला के दिखा दो, 25 साल शोहर के साथ गुजारे हो और शोहर को कभी दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत न पड़ी। अल्लाह अल्लाह, तन्हा क्या कहें, सैयदा खदीजतुल कुबरा है कि हुजूर 25 साल आपके साथ, आप हुजूर के साथ रहे, लेकिन कभी दरवाजे पे आवाज की जरूरत नहीं पड़ी। क्या कहें। आज कह रहा तावीज दे दो, बीवी फरमा बरदार नहीं है। हाँ, कल ये हुआ, कह रहा 3 तावीज दूंगा, 18 दिन घोल के पिलाना, फरमा बरदार हो जाएगी। बाबा की खुद 6 महीने से नाराज बैठी है। ये कंडीशन है, उनकी अपनी मैचे से नहीं आ रही है और हमारी को तावीज दे रहे। सबसे बड़ा तावीज किरदार मुस्तफा है। वाह वाह। जिनके घरों में झगड़े होते हैं ना, हजरत खदीजतुल कुबरा और हुजूर की जिंदगी पढ़ लें, खुदा की कसम झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, घर में बरकतें नजर आने लग जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है।
कहाँ खोलेंगे कि इस यार ने खुशबू कहाँ तक है। हाँ 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 बात बढ़ती चली जा रही है। अल्लामा अफजाल साहब की अल्लाह तशरीफ फरमाए। मुफ्तियान इकराम बैठे हुए हैं। हाँ भाई, बस आपसे थोड़ी सी गुजारिश है मेरी, ये बातें थोड़ी दिल पे लिख लीजिएगा कि अल्लाह करे हम बदल जाएं, बिल्कुल बदल जाएं। बड़ी मेहनत लगी है दीन के लिए। हजरत खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ रही, और कभी आका ने ना दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। हुजूर पहुंचते थे, दरवाजा खुल जाया करता था। एक दिन मेरे हुजूर ने कहा, खदीजा 25 साल हो गए, पता कभी आवाज नहीं देनी पड़ी, तुझे कैसे पता चलता है मैं आ गया हूं? वो कहती है, हुजूर जब आप घर से जाते हैं तो घर से जाते हैं, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, हर वक्त मेरे दिल में रहते। सुभान अल्लाह ये सुभान। कहती थी, हुजूर आप हर वक्त मेरे दिल में रहते। और कहती हैं, सरकार आपकी खुशबू मेरे दिमाग में ऐसी बस गई है कि आप दरवाजे पे नहीं, गली की पहली वाली चौक में होते ना, आपके आने से पहले खुशबू दरवाजे पे पहले आ जाए। हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। ये जिंदगी उनकी। क्या कहना। 25 साल हुजूर के साथ गुजरे, और जब आए ना शाबे अबी तालिब के दिन, हुजूर एक दिन आए, और आए ना अंदर, खदीजतुल कुबरा आगे आ गई। हुजूर फरमाते हैं, बेटी नजर नहीं आ रही, बेटी नजर नहीं आ रही। और खुद मुर्गे खा के पेट से पत्थर बांधने की तलकीन करने वालों, जरा तुम भी कान खोल के सुन लो। हाँ ना, बेटी नहीं आई। खदीजतुल कुबरा आंख में आंसू भर लाई। हुजूर बेटियां पीछे खड़ी, सामने क्यों नहीं? कहा, हुजूर बेटी बेटी है ना, उन्हें पता है बाप कितने दुख में है, उनकी भूख से ये हालत है कि उनका चेहरा उतर गया है। हुजूर बेटियां आपके सामने उतरे चेहरे के साथ इसलिए नहीं आना चाहती, कहीं हमारे बाप की तकलीफ बढ़ ना जाए, अल्लाह अल्लाह, बढ़ ना जाए। फरमाया, लाओ मेरी फातिमा किधर है? खदीजतुल कुबरा हटी, सामने खातून जन्नत, बेटी खैर है? रो के कहती, अब्बा आज भूख बहुत बढ़ गई है, अल्लाह। अब बर्दाश्त नहीं होती। हुजूर ने झोली नहीं फैलाई, हुजूर ने मुसल्ला बिछा के मन्ना सलवा नहीं मांगा था, मेरे नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा। शाबे अबी तालिब के चक्कर लगा रखे हैं कि कहीं पे पत्ते गिरे पड़े मिल जाएं। आज भूख का आलम यह है कि जो हुजूर के साथ उस पहाड़ी की खाओ के अंदर थे, उस मैदान में जितने लोग थे, सारे लोग पत्ते इकट्ठा कर चुके हैं। आज नबी की बेटी के हिस्से में गिरे पत्ते तक नहीं आ रखे हैं। आका करीम ने एक दरख्त पे देखा, सूखे पत्ते लगे हुए हैं। सरकार ने पकड़ के दरख्त को हिलाया, चंद पत्ते टूट करके गिरे हैं। अजीब मंजर था, अर्श इलाही के फरिश्ते चीख मार गए थे, मालिक ये क्या मंजर है? पहले नबियों ने की उम्मत ने अगर भूख की शिकायत की है, तूने जन्नती खाना उतारा था, ये तो तेरे महबूब की बेटी है, खातून जन्नत फातिमा है। मालिक इजाजत दे, हम जन्नत का दस्तरखान लेके चले जाएं। रब ने फरमाया, फरिश्तों ठहर जाओ, ये मेरा और मेरे महबूब का मसला है, तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। मालिक, महबूबों के साथ ऐसा कब किया जाता है? पहलों के लिए मन्नो सलवा, आज के महबूब के लिए मेरे मालिक पत्ते भी नहीं है। रब फरमाता, देखो तो सही मेरा महबूब क्या चाहता है। आका ने पत्ते गिराए, बेटी से कहा झोली फैला, खातून जन्नत ने दामन खोला, आका ने पत्ते उठाए, गोद में डाले। आका कहते, फातिमा इन्हें खा के गुजारा कर लो, वादा करता हूं यहाँ आका उठा लो, आखिरत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह। और मैं बता दूं, कोई इस वाकये को उठा के ये न कहते कि नबी कितने मजबूर थे। मालिक कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, हाय हाय हाय, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वाह 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 वाह, ये भी कान खोल के सुन लीजिए। अगर कोई दलील करबला को बनाता है कि पानी बनता खुला क्यों नहीं, तो फिर अजमेर आके देख ले, हाय हाय, वाह अजमेर वाह आके देख ले। वाह वाह वाह, अजमेर में हुसैन नहीं, हुसैन का बेटा है। हाय हाय हाय, क्या बात है, हाँ, वहां नहरे फुरात, यहाँ आना सागर। क्या कहने। कहते हो मजबूर थे, सकीना को पानी न पिला सके। मैं कहता हूँ बेटे की शान देख, प्याला दे के कहा था कि करीब मत जाना, खाली दिखा के कह देना उन्होंने बुलाया है। वाह 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 वाह, दूर से दिखाया था तो तालाब उठ के आ गया था। क्या कहने। कसम खुदा की, अगर असगर एड़ियां रगड़ देते ना तो नहरे फुरात की औकात क्या है, करबला में जमजम निकल आता। क्या कहने, वाह 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 वाह, निकला, वाह वाह वाह, बात करते हैं लोग। तो इस वाक़े को उठा के कोई ये न कहे जी अपनी बेटी को पत्ते खिलाए, वो सब तालीम उम्मत के लिए था। और महबूब फरमाते हैं, आका करीम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने किसी को आजमाया ना
तो आजमाइश के हिसाब से उसको रुतबे दिए गए और फरमाए मैं सबसे बड़ी मुसीबतों से आजमाया गया हूं, इसलिए अल्लाह ने मेरा सबसे आला मकाम रखा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसूल है कुछ तरक्की के भी, कामयाबी के भी अपने अपने उसूल होते हैं। क्या कहना। हाँ, ये सैयदजादे लोग बैठे हुए हैं, तो फिर देखेंगे सैयदजादा एक और आएगा, चेहरा देखेंगे आप, तेरी नस्ल पाक में है। वाह 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 वाह, अरे शुक्र है हम बरेली वाले यार, वाह वाह, शुक्र है हम बरेली वाले। आला हजरत ने हमें जहन्नम में गिरने से बचा लिया है। हमारे एक हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। वाह वाह, और ये नजरिया इमाम अहमद रजा ने दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर वाह, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। है ना। शुक्र है अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा अता किए। मुझे नहीं मालूम है किसको बात सुनी लग रही हो, किसको काट रही हो, किसका कितने पानी हो रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। हम तो खुल के कहते हैं कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे, है ना। वाह, भाई समझे जरा इन चीजों को उठा के, जी उनके पास कुछ नहीं था, उन्हें नहीं पता था, उन वो बेटी की मदद नहीं कर पाए। सुन तुझे बताऊं, सुने, हुजूर के बेटे, हुजूर की बात नहीं बेटों की बात मैं करूं। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम हसन, शुक्र है हम खाली हुसैन का नारा नहीं लगाते, हम हसन का भी नारा लगाते हैं, हम हुसैन का भी नारा लगाते सुभान हैं, अल्लाह, वाह वाह वाह, क्योंकि दोनों ही मुस्तफा के जिगर के टुकड़े हैं, क्या कहने, वाह वाह। दोनों ही। हुजूर ने दोनों को चूमा, दोनों को सूंगा, हुजूर ने दोनों को गोद में उठाया, दोनों को कंधे पे बिठाया। हाँ, हुजूर दोनों से प्यार करते थे, तो फिर हम एक की बात क्यों करें। हमें तो दोनों ही प्यारे हैं, क्योंकि दोनों हुजूर को प्यारे। जो है सारे लोग तो नहीं है ना, है। बैठने में दिक्कत हो रही है, बातें ना करो भाई। किसी के घुटना लग जाए ना, तो भले महफिल में जगह हो ना हो, दिल में जगह रहनी चाहिए। घुटना लग जाए तो माफ कर दो, कोनी लग जाए तो माफ कर दो। और चली क्यों रहे हो भाई ऐसे, जब लग रही है एक दूसरे के, सिमट के बैठ जाओ, सिमट के बैठ जाओ। वो कौन सी जगह है जहां आला हज़रत सरकार मज़ार शरीफ से गए थे, नारायण शरीफ की तरफ ही है, कालकी शरीफ, गुलबराग शरीफ, एक जगह और थी ना, वो बड़ी बारगाह, मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा है। आला हज़रत जब गए ना तो यूं गए ऐसे करके, ऐसे। किसी ने पूछा हज़रत आप इस मजार में ऐसे क्यों गए, कहने लगे उस मजार में रब के इतने फरिश्ते मौजूद थे कि अंदर जाने की जगह मुश्किल से मिल रही। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। जगह तंग होती तो यूं चला करो, यूं सिमट जाया करो, सिमट जाया करो। तो ये भी हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, बुजुर्गों से सीखा। शुक्र है रब ने हमें आला हज़रत वाला बनाया। सुभान अल्लाह। वो कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, वाह, जोर से देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। किराया न लगता हो तो पीछे वाले भी बोल सकते हो, और सारे ही सुननी है तो बोलिएगा, मुझे किसी सुले कुल्ली की आवाज नहीं चाहिए। मैं हज़रत मना नहीं करता हूँ, किसी भी मसलक का बंदा आके बैठ जाए, मैं भगाता नहीं हूँ, क्योंकि भगाए वो जिसके पास कच्चा माल हो। वाह 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 वाह, अपने पास चोरी का माल नहीं, आला हजरत की तिजोरी का माल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो कहते हैं, और सुन, हमारा विजदान कहता है महफिल खत्म होते होते कह के उठेगा, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले, आय हाय हाय, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले, वाह वाह, है ना। तो जो भी ये भले ना बोले, जब तक अकीदा पक्का ना हो जाए, जिनका पक्का वही बोले। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जियो सलामत रहो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इमाम हुसैन गुली से गुजर के जा रहे, बचपन का जमाना, हुस्न तो इनके दर की खैरात, आय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, और सखावत इनकी बांधी है। वाह 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 वाह, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। आय हाय, सखावत सैयदों की पहचान है सबसे बड़ी। वाह वाह वाह, अगर कोई बड़े से बड़ा शजरा भी लेके बैठा है ना, और सखावत नहीं है, तो डाउट हो जाता है हमें। और अगर कोई शजरा नहीं हो और सखावत हो, तो समझ जाते हैं ये शान तो हुजूर के खून में नजर आया करती है ना। तो कोई लोग कई बार कह देते हैं कि ये ऐसा वैसा। सुने, हसनैन करीमैन जा रहे हैं,
रास्ते में हातिम ताई का पोता वो भी गुजर के जा रहा है। उसने देखा ना ये हसीन बच्चा कौन है, किसी से रोक के पूछा, यार ये किसी बादशाह का बेटा है, लगता तो ऐसा है कि महल में परवरिश पाई है, इतना हसीन। तो किसी ने कहा ये शहजादा तो नहीं, ये अली का बेटा है, हुजूर का नवासा है। उसने जब इतना सुना ना कि कौन का जिनकी रिसालत के डंके पूरी दुनिया में बज रहे, उसको भी चढ़ गई, क्योंकि वो ठहरा हातिम ताई का पोता और इधर बैठा मुस्तफा का नवासा। क्या बात है, वाह वाह। कंधे पे हाथ रख के कहने लगा, बच्चे तुम्हारे दादा नाना अफजल हैं या मेरे दादा के तज़किरे दादा है? मुस्कुरा के कहने लगे, तेरे दादा के चर्चे जमीन पर हैं, मेरे नाना के चर्चे अर्शों पे होते हैं। तेरे दादा के चर्चे जमीन पे होंगे, मेरे नाना के चर्चे आसमानों तक हैं। उसे पता था कि ये कनाशियार लोग हैं, ये दुनियादार नहीं, दीनदार लोग हैं, हवेलियां छोटी है, कच्चे मकानों में रहने वाले, रोजों में वक्त गुजारने वाले पाकश लोग। उसने बढ़ के एक सवाल और कर दिया, उसने कहा, बताओ तुम्हारे नाना की शान बड़ी कि मेरे दादा की शान बड़ी? क्या बात है, वाह वाह मुस्कुरा के कहने लगे, शान तो मेरे ही नाना की बड़ी है। वाह वाह। तो उसने कहा, तुम अपने नाना का कोई कारनामा बताओ। तो फरमाने लगे, मेरे नाना के सारे ही कारनामे बड़े हैं, तू अपने दादा का कोई कारनामा बता। हाँ वाह। तो उसने कहा, मेरे दादा की सखावत पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या कहें। फरमाने लगे, क्या सखावत तेरे दादा की? क्या तुम्हें पता है, मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने? सुन पा रहे? बोले कितने? 7 दरवाजे। कहने लगे फिर? कहने लगे, सखावत का आलम यह था कि एक फकीर आता, पहले दरवाजे से भीख लेता, वहां से दे दिया जाता, उसी महल के दूसरे दरवाजे पे चला जाता, कहते फिर वहां से भी भीख मिल जाती, फिर दूसरे से निकल के तीसरे पे जाता, का फिर वहां से भी भीख मिल जाती, का फिर तीसरे से चौथे पे जाता, का वहां पे भी भीख मिलती, का चौथे से 5वें पे जाता, का वहां से भी भीख मिलती, फिर 5 से छठा, छठा से 7, कहता है एक फकीर 7 दरवाजे पे जाता। क्या बात है, वाह। और 7 दरवाजों से भीख दी जाती थी। ना ये नहीं कहा जाता था तुझे पहले दरवाजे से मिल गई है। इतना सखी था मेरा दादा, क्या बात कि हर दरवाजे से एक बंदे को भीख दी जाती थी। अब बताओ तुम्हारे नाना के महल के कितने दरवाजे हैं, क्या इतनी भीख दी जाती है? आप मुस्कुरा के कहते हैं, बड़ा कमजोर था तेरा दादा, बड़ी थोड़ी भीख देता था वो। का क्या कहना चाहते हो? का सुन, तेरे दादा के 7 दरवाजे थे, पहले दरवाजे पे साहिल ने हाथ फैलाया, जब भीख दी, जरूरत पूरी नहीं हुई थी, तभी दूसरे दरवाजे पे गया है, वहां से भी भीख मिली, जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर तीसरे पे पहुंचा है, तीसरे से भीख मिली, वहां से भी जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर चौथे पे गया है, का 7 दरवाजों पे घूम जाता था, और तेरा दादा इतना नहीं देता था कि जरूरत पूरी हो जाती। और सुन, मेरे नाना के दरबार का एक दरवाजा है, एक दरवाजे से इतनी भीख दे दी जाती है, जिसे एक बार दे दिया जाता है, उसे जमाने में कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। तो कभी ये मत कहना जी उनके पास क्या। सुन, सीधी सी बात है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेल भी बनाया, लेकिन कोशिश ये करें इन बवालों से निकलेंगे इंशाल्लाह। तो दीन में नहीं लगा ना इन लोगों का, दीन में नहीं लगा, दीन में लगा है हुजूर के घर वालों का, हुजूर के घर वालों का। वाह वाह वाह। भाई किसी का एक जवान बेटा चला जाए ना, तो पूरा खानदान कमर पकड़ के चलता है उसकी, कि भाई बाप को यहाँ बैठाओ, चाचा को यहाँ बैठाओ, उनका यहाँ जवान बेटा मरा है। हाँ, खुदा की कसम सलाम करो हुसैन के जज्बे को। 71 लाशें खुद उठा के लाए हैं और आज कोई कंधा पकड़ने वाला नहीं है। ऐसी जरूरत तो ला के दिखाओ कोई, 71 लाशें उठाने वाला, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। किसी माँ का एक लाल चला जाता है
पूरा परिवार आकर के उसको तसल्लियां देता है। मोहल्ले की औरतें कहती 12 बजे तक बैठो, आज माँ को नींद नहीं आएगी, उसका लाल चला गया है। आज खानदान वाले बैठे हुए हैं 12-12 1-1 बजे तक, जिसका बेटा चला जाता है उस माँ को तसल्ली दी जाती है। खुदा की कसम ला तो ऐसी कुर्बानी सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी देख, आज पूरा खानदान करबला में शहीद हुआ है। सिर्फ भतीजे नहीं बल्कि 2 लालों की कुर्बानियां सामने है, बेटे शहीदों के सामने पड़े हैं। लेकिन जरूरत और हिम्मत का आलम यह था, सैयदा ज़ैनब कहती थी और तो खबरदार आगो पुका न करना, जल्दी करो, तयम्मुम करो, मुसल्लों पे आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेटों के गम में असर की नमाजें कज़ा हो। अल्लाह 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 ये अल्लाह, अहले बैत का सब्र है। क्या कहने। ऐसे दीन बचाए, गुंडों ने दीन नहीं बचाया, अल्लाह वालों ने दीन बचाया। याद रखिएगा, अल्लाह वालों ने। और सैयदा कायनात की सैयदा बेटी सुने जरा, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला, आप जिंदगी पढ़ के देखें इनकी तो पता लगता है ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। खुदा की कसम, घर जलते रहे लेकिन इन्होंने हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, खानदान लुटा दिया, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा। और मैं तो खुल के कहता हूं, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हाँ? बड़ी कुर्बानियां है अहले बैत की। हमारा कुछ नहीं लगा ना, हमारा कुछ नहीं लगा, हम तो कब्बाल को बुलाएंगे, तमाशे करेंगे और फिर यूं पैसे लुटाए जाएंगे। जो ज्यादा पैसे लुटा लेगा उसे जन्नत की डिग्री दे दी जाएगी। इतनी सस्ती जन्नत है कि यहाँ बैठा हुआ लुच्चा फ्री में जन्नत बांट दे। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े ना खाते। अल्लाह अल्लाह, सीधी सी बात है, जन्नत मुश्किल है, जन्नत मुश्किल है। पूछ जा करके हजरत सुहैब रूमी से, हाँ क्या क्या ना गया, क्या क्या कुर्बानियां न दी गई है दीन के लिए। खुदा रहा आपको गुजारिश, तमाशे बंद होने चाहिए जितने भी मदारों पे हो रहे हैं। और अगर कोई करे तो तुम शामिल मत होना। शामिल तो नहीं होगे, वादा करें नहीं होंगे इंशाअल्लाह, वादा करें नहीं होंगे ना शामिल। ये बोल कौन कौन नहीं रहा, देखो तो किसे किसे तरक्की पड़ी है। शामिल हो गए इन तमाशों में, बोलो नहीं हो गए ना शामिल, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गुंडागर्दी गुंडों के लिए छोड़ दो। हाँ, हमें वो महफिलें चाहिए जिसमें जाएं, लोगों के पास बैठें, इन दीन वालों को देखें, इनकी बातें सुने, कभी खुदा याद आए, कभी मदीने वाला मुस्तफा याद आए। वाह वाह, यही कोशिश कीजिएगा। बस मैं आखिरी बातें कह के गुजर रहा हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ, जो बात मैंने कही थी मैं उसको फिर कंटिन्यू करके बात फाइनल कर लूँ। फरमाया गया, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तमाशा क्या बना, पैसे लुटाए गए, पैसे लुटाए गए। हाँ भाई, बिगड़े जो हम है ना, हम बिगड़े इसीलिए। मुझे कोई 500 का नोट दे जाए, मैं कहूंगा जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो, इसने देसी मुर्गा खिलाया था ये जन्नती है, इसने मटन खिलाया था ये जन्नती है। मतलब से जन्नत बट रही है, मतलब से जन्नत ऐसे नहीं, जन्नत रत जगहों में मिलती है, जन्नत सजदों से मिलती है, जन्नत आंसुओं से मिलती है, मेहनत करके मिलती है, जन्नत खुदा को राजी करके मिलती है। आलमगीर का बहुत लंबी हो जाएगी भैया, नहीं नहीं और न करें 2 घंटे नहीं भाई, मैं मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ, मुझे रोज बोलना रहता है। और आप जैसे मोहब्बत करने वाले ही लोग अल्लाह करे रोज मिल जाया करें तो मौलवी 8 दिन में काम हो जाए। हजरत मैं अपने इलाके में बहुत कम वक्त दे पाता हूँ, मैं तो नसीब आदमी हूँ, ज्यादातर बाहर मेरा रहना होता है, लेकिन जब से इलाके में आया उसका संकट छठी का भी याद दिला दिया इलाके वालों ने। कोई जलता है सही जिसमें 1.5 घंटे से कम मेहनत करा रहे हैं, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, 2 घंटे रोज बोलते हैं, जबकि डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 40 मिनट दिए और वो भी का स्लो मोशन में बात करनी है। जब से मुझे थोड़ी शिकायत हुई थी, तमाम तर उलमा जानते हैं इस बात को जो। हाँ तो भाई, मैं फिर फरमाइश की जा रही है, कर दिया जाए, जरा कह दें या रसूल अल्लाह।